प्रधानमंत्री महोदय की भावनाएं, उनका शब्द आज भी हम सबको प्रेरित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए। Appointments and solemn ceremony has just been concluded at the National War Memorial, where a grateful nation paid tribute to the soldiers who gave their yesterday such that we have a better today. The dignitaries have started to arrive in front of the saluting dais. Defence Secretary Sri Giridhar Aramane, रक्षा सचिव महोदय का आगमन और इसके साथ ही वायुसेना अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पहुँचते हुए, followed by the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, Vayu Medal, ADC, एडमिरल आर हरि कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC भी हमारे मध्य पहुँच चुके हैं, followed by the Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADC. Patriotic fervor bringing the whole country together with a feeling of pride flowing in the heart and mind of every Indian on the planet. राष्ट्रीय समर स्मारक प्रतीक एक सैनिक के अमरत्व का, कीर्तिगान उसके अदम्य शौर्य का, स्वाभिमान का, सर्वोच्च बलिदान का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय समर स्मारक, Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADC. Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल हमारे मध्य पधार चुके हैं। Followed by the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, PVSM, UVISM, AVSM, SM, VSM. Thereafter, we have in our midst the Minister of State for Defence, Sri Ajay Bhatt. रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी का आगमन, कुछ ही पलों में रक्षा मंत्री महोदय यहाँ पधारेंगे। The atmosphere at Kartavya vibrant, pulsating and surcharged with a nationalistic ardor and passion that is truly infectious and overpowering. Motorcade of the Honourable Prime Minister is gradually moving towards the saluting dais. नए भारत को अपने प्रखर नेतृत्व से नई दिशा दिखाने वाले, हृदय में राष्ट्र भक्ति की लौ, राष्ट्र सर्वप्रथम की श्वास, जिनकी जीवन यात्रा मातृभूमि के प्रति समर्पण का संकल्प है, सीमाओं की परिधि से परे जिनका हर आह्वान एक जन आंदोलन बन जाता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य कुछ ही पलों में उपस्थित होते हुए The Honourable Defence Minister moving up to the vehicle of the Honourable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। Ladies and gentlemen, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has arrived. एक ऐसा नेतृत्व जो कोविड वैक्सीनेशन से लेकर हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी बुनियाद जननी जन्मभूमि स्वर्गदत्ती गरियसी की पुरुषोत्तम परंपराओं में निहित है। The Honourable Prime Minister being received by Defence Minister. The Defence Minister then presents the Minister of State for Defence, the CDS, the 3 Service Chiefs and the Defence Secretary. Prime Minister exchanging greetings with members of Parliament and other eminent personalities in the enclosure.
Ladies and gentlemen, at this point of time, you can see the President of India along with the chief guest being escorted by the President's bodyguard on their way to the saluting dais from Raisina Hill. The President's bodyguard is the senior-most regiment of the Indian Army. Republic Day 2023 is very special this year, as the President's bodyguard would be celebrating 250 years since its raising in 1773. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, is riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger, Glorious. To the left of the President's car is the second-in-command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger, Sultan. The President's bodyguard is unique and distinct amongst all regiments, not only in India, but also in the entire world. It is the senior-most cavalry regiment carrying out mounted ceremonial duties for their President. Its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. These magnificent horses of the elite President's bodyguard are bred by the Remounted Veterinary Corps and are looked after by 44 Military Veterinary Hospital under command of Colonel Neeraj Gupta. It has seen action in 1962 in Chushul, in 1965 in the Western Theatre, in 1988 in Operation Pavan in Sri Lanka, and during Operation Vijay in 1999. The troops of the President's bodyguard have served in UN operations, and a detachment of the regiment also serves on the highest and coldest battlefield in the world, the Siachen Glacier. The men of this illustrious regiment do their share of the field with the Rashtriya Rifles and operationally deployed with the mechanized formations in high altitude areas. सुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं सुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मत क्रीड़ागण में प्रमुदित बंधु भावनाएं मैत्री मत Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the chief guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवी और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन, उनके साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विश्व के राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल सीसी भी उपस्थित हैं। The President of India, the chief guest, being received by the Prime Minister Shri Narendra Modi. The Prime Minister then introduces the Defence Minister Shri Rajnath Singh to the President of India and the chief guest, followed by the Minister of State for Defence Shri Ajay Bhatt. Thereafter, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Chief of Air Staff Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, and the Defence Secretary. We are indeed privileged to have in our midst the President of India and the President of the Arab Republic of Egypt. This is the first time that the President of the Arab Republic of Egypt will be the chief guest in our Republic Day celebrations. Both countries are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations this year. India and Egypt enjoy warm and friendly relations based on civilizational and deep-rooted people-to-people ties. Over the past years, President El-Sisi and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi have had several meetings to explore new ways of bringing the two countries together and elevating it to new horizons. The President of India and the chief guest moving up the steps of the saluting dais, escorted by the two AD Coms, Major Rohan Chauhan and Squadron Leader Saurabh Sharma. और अब 871 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार सेना मेडल की कमान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार अनूप सिंह। इस बार हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी पहली बार कर्तव्य पथ पर दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी।
जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। देवियों और सज्जनों, परेड का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लांसर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट, T-90 टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर की सशक्त कमान संभाली। इस कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपने 35 वर्षों के अनुकरणीय सैन्य सेवा काल में आपने कमान के बीजीएस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ व कमान पदों को सुशोभित किया। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट व स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर्स जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स वेलिंगटन में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस, फ्रांस में प्रतिष्ठित कमान, जनरल स्टाफ कोर्स, हायर कमांड, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है। देवियों और सज्जनों, स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के पद पर पदासीन हैं। इन्हीं के ठीक पीछे परेड उप कमांडर मेजर जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल आ रहे हैं। मेजर जनरल भवनीश कुमार 16 दिसंबर 1979 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन हुए। अपने 3 दशकों के विस्तृत सेवा काल में जनरल ऑफिसर को सभी क्षेत्रों में ऑपरेशनल अनुभव रहा है। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तुंगता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक कोर के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं कश्मीर में माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रहे एवं पश्चिमी सीमाओं पर रैपिड स्ट्राइक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे। जनरल ऑफिसर ने सभी अनुदेशक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और अब परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त।
सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले वो योद्धा जिन्होंने जान की बाजी लगाकर बहादुरी एवं रणकौशल का नया इतिहास रचा। और इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल C.A. पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, कर्नल D. श्री कुमार अशोक चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म हम सब वंदना करेंगे। To add the special fervor in our grand 74th Republic Day celebrations, marching smartly towards the saluting days for the very first time on Kartavya Path, ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile Nile River Valley. Ladies and gentlemen, it is the contingent of the Egyptian army, marching on the tune "O Dearest Name in Existence," led by Colonel Mahmood Mohammad Abdel Fateh Al-Kharase, comprising of 144 soldiers representing the main branches of the Egyptian armed forces, reflecting the greatness of the Egyptian state and its pride in its ancient history. The Egyptian armed forces considered it as an honor and privilege to participate in India's Republic Day parade. The modern Egyptian army was established during the rule of Muhammad Ali Pasha, who is considered to be the founder of modern Egypt, as he formed an army of Egyptians. The Egyptian army has not entered a war since the peace agreement, but still, some of the ancient Egyptian war plans are being taught in the military academies of world and Egypt. कर्तव्य पथ पर जन भागीदारी, श्रमयोगियों का सम्मान दिखा, वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर अंधेरे में मैंने उंगलियों से हिंदुस्तान लिखा। अब आप देखेंगे लौह बल मैकेनाइज्ड फोर्सेस किस प्रकार कर्तव्य पथ पर अश्वारोही दस्ते के नेतृत्व में अपने इस्पादी इरादे से देशवासियों का परिचय कराएंगे। सलामी मंच की ओर ग्वालियर लांसर की समारोहित पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ता, दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्य बाली संभाल रहे हैं। विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल। 1 अगस्त 1953 में रेजिमेंट का गठन, अब तक 39 युद्ध सम्मान, 1 पद्मश्री, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा में आदर्श अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। Atmanirbharta in defense industry has enhanced India's strategic independence. As a path of transformation, a large number of indigenous equipment has added to the might of our defense forces. Now we welcome before you the might of the Indian Army with the detachment of main battle tank Arjun of 75 Armored Regiment led by Captain Amanjeet Singh. The newly developed Kanchan armor provides an all-round anti-tank warhead protection much higher than available in comparable third-generation tanks. The 4-man crew MBT is augmented with an array of systems including FCS, Integrated Fire Detection and Suppression System and NBC Protection System. The motto of the regiment is Sahasam Vijayate. स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और हमारी सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नाग मिसाइल सिस्टम नाम इसका दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नामिस एक टैंक विध्वंसक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस टरट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी प्रभावी रेंज 4 किलोमीटर है।
ये टैंडम वॉरहेड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तरबंद दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 मैक, हर मैदान फतेह। And now approaching the saluting dais is the mechanized column of Infantry Combat Vehicle BMP-2 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Sarat, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude area. The motto of the regiment is Valor and Faith, which means Veerta or Vishwas. पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक, आत्मनिर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ गढ़ता आधुनिक भारत, इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल का 3री बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन खतरवाल द्वारा मार्गदर्शन। इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में एस्कॉर्ट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात पूरी तरह से बुलेट एवं माइन प्रूफ एक ऐसा फौलादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाखी भाषा में युद्ध घोष की सो लहर ग्यालो। Coming up next is the detachment of K9 Vajra T of 224 Medium Regiment, self-propelled, led by Lieutenant Kartavya. Having a firing range of 40 kilometers, the tracked self-propelled gun system can move at a maximum speed of 60 kilometers over arid desert terrain. Ideally suited for mobile warfare, it has greater mobility, longer range, higher rate of fire, and increased battlefield survivability. Motto of the regiment, Sarvada Sarva Pratham, which means always the first. I stand vigilant on borders. I wear the crown of victory on my forehead. I face the enemy with swelling chest. I am brimming with skills. I demolish all the barriers. I am the next game changer in future warfare. A supersonic high-precision cruise missile having a range of 400 kilometers. Yes, ladies and gentlemen, it is none other than, it is a detachment of BrahMos of 861 Missile Regiment led by Lieutenant Prajwal Kala. BrahMos is capable to strike deep inside the enemy territory with high precision and devastating effect. 861 Missile Regiment displayed exemplary courage and valor during Op Cactus Lily in 1971 Indo-Pak War. Motto of the regiment, Swami Sharanam Ayyappa. अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। यह ब्रिज हमसे कहती है, मैं बाधाओं से नहीं, बाधाएं मुझसे डरती हैं। कुछ ही मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये स्वदेशी पुल दर्शाते हैं कि भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड दस्तों का मार्ग कोई बाधा रोक नहीं सकती। न रुकेंगे न झुकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम रेजिमेंट का आदर्श, अग्रणी अजय, जीत हासिल करने में हमेशा आगे। The next detachment, ladies and gentlemen, is of Mobile Microwave Node and Mobile Network Center of Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters 2nd Regiment. The column consists of 2 vehicles, a Mobile Microwave Node along with Mobile Network Center. Major Mahima Kataria of 2 Army Headquarters 2nd Regiment is in charge of the Mobile Network Center. The Mobile Microwave Node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The motto of the corps is Tibr Chaukas, which means swift and secure. The next detachment is of Akash Weapon System of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dashrathe, accompanied by Lieutenant Chetna Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. Akash Weapon System, the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missile against enemy aerial platforms.
Akash weapon system capable of keeping our skies protected and safe. Used as a potent deterrent in 2019, it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. Motto of the Corps of Army Air Defence is Akashe Shatrun Jahi. उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। आकाश मिसाइल के मैकेनाइज्ड दस्ते के बाद अब बारी है गौरवशाली मार्चिंग दस्तों की। कर्तव्य पथ पर शौर्यपूर्ण कदमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय में मंच के आगे से गुजरेंगे। सबसे पहले मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता। नेतृत्व 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के कैप्टन हर्षदीप सिंह सोही द्वारा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कम कदम बढ़ाकर चलना होगा। 27 उत्कृष्ट बटालियन से सुसज्जित एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसमें 15 इन्फेंट्री बटालियन शामिल हैं। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात पैदल सेना को अधिक गति शक्ति देने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां एवं बेहद बेहतर हथियार प्रदान किए गए और इस प्रकार जन्म हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। इस रेजिमेंट ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत विदेशों में भी भारत का परचम लहराया। 3 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 55 वीर चक्र एवं कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित। आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास, युद्ध घोष बोल भारत माता की जय। एक नया भारत रचने को निकल पड़ी हैं टोलियां, गूंज उठी हैं दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। और इसके पीछे अमरकोर सेंटर एवं स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर एवं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड शेरे जवान की सुर लहरियां बिखेरता हुआ। बैंड में 100 शूरवीर संगीतकार शामिल हैं। नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र द्वारा और इनका साथ दे रहे हैं अमरकोर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसावदार मंटू मंडल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। परंपरागत सैन्य समारोह हो, खेल का मैदान या अन्य समारोह, सैन्य धुनें हमेशा जोश का संचारण करती आई है। The next contingent is of the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, the Punjab Regiment, Longewala. The Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval insignia, the Galley, which was awarded in 1839 in recognition of its volunteering to sail overseas first time during the First Burmese War. Motto of the regiment, Kushki Watari Stalva Jal, which means by land and sea. The regimental war cry, Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal. Marching smartly, forming a graphic mosaic, truly eye-catching, marching shoulder to shoulder in perfect symmetry in rank and file, the Punjab Regiment. महान मराठा सैन्य प्रतिभा छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व गुणों और अदम्य युद्ध घोषक भावना से प्रेरणा लेते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता दी मराठा लाइट इन्फेंट्री का है, जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के कैप्टन शाश्वत दबास कर रहे हैं। रेजिमेंट को पारंपरिक भारतीय खेल मलखंब में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। आदर्श वाक्य कर्तव्य सम्मान उत्साह, युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और इन्हीं के ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता शान से आगे बढ़ रहा है। इस बैंड दस्ते में 100 संगीतकार शामिल हैं। बैंड का नेतृत्व सिख रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कुलवंत सिंह कर रहे हैं। इनका साथ दे रहे हैं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के हवलदार लक्ष्मण सिंह। यह बैंड अप्पू की धुन के साथ शान से आगे बढ़ रहा है। We never stop because we have moved step by step the path of transformation. While we move, we sing a song of unity for entire nation.
We are the Tigers of Mountains. We are the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21st Battalion Dogra Regiment. Dogra Regiment is one of the most prestigious and decorated regiment of the Indian Army. The Dogra Regiment has shown its sacrifice and valor in all the wars fought by the nation. Motto of the regiment, Kartavyam Anvatam. War cry, Jwala Mata ki Jai. घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। अगला दस्तक गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के मेजर रत्नेश तिवारी के नेतृत्व में 2 थिएटर ऑनर, 1 बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित, 3 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्म ही धर्म, युद्ध घोष, बोल बजरंग बली की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे सुन, ताल और लय के कदमों से बढ़ता अगला दस्ता, जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता, असम रेजिमेंटल सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 100 संगीतज्ञ शामिल। नेतृत्व कर रहे हैं महार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गज सिंह। यह बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है। कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता आनंद ले इस सुरमई धुन का। अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। अगला मार्चिंग दस्ता शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार। गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। खुखरी और गोरखा के बीच का रिश्ता पुरातन है और दशकों से है। आदर्श वाक्य काफर हुनु भंडा पुरमु रामरो, अर्थात कायरता के जीवन से मौत भली। युद्ध घोष जय महाकाली, आयो गुरखाली। वतन की सर बुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच की ओर अग्रसर अगली झांकी हमारे पूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारत वर्ष का 3D नक्शा प्रतीक आजादी के 75 वर्षों में सीमाओं की निगरानी के संकल्प का, अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के महाप्रयाण का, तीनों सेनाओं के लोगों प्रतीक आपसी समन्वय एवं तालमेल के नारी शक्ति को दर्शाते हुए पहली बार महिला पूर्व सैनिक कैप्टन यशिका त्यागी भी इस दस्ते में शामिल है। ये झांकी अतुल्य गंगा एवं नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, डिजिटल माध्यम से पोल्यूशन मैपिंग, कृषि में ड्रोन्स का इस्तेमाल, डिजिटल जागरूकता इत्यादि में पूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे अद्वितीय योगदान को दर्शाती है। कलम और स्पैनर प्रतीक इनके विस्तृत ज्ञान के, इनके योगदान के। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready, courageous and organized. Ladies and gentlemen, we have Indian Navy Band singing the song Jai Bharati. It is comprising of 80 musicians led by M. Anthony, Master Chief Petty Officer, Class 2. They sail with valor in their soul and honor in their heart. They are the saviors of the marine borders. They possess invincible spirit and dauntless bravery. Their exemplary dedication and hard work keeps the ship moving. Yes, they are 144 young sailors of Indian Navy contingent, led by Lieutenant Commander Disha Amrit, Lieutenant Ashwini Singh, Sub-Lieutenant Priyanka Sharma, and Sub-Lieutenant M. Aditya. This contingent consists of 3 women and 6 men Agniveers. Next, ladies and gentlemen, on the heels of Indian Navy marching contingent, we have Indian Navy tableau on the theme Indian Navy, combat ready, credible, cohesive and future-proof, showcasing the multi-dimensional capabilities of the Indian Navy. Nari Shakti in the form of presence of Agniveers and key indigenously designed and built inductions under Atmanirbhar Bharat. The tableau commanders are Lieutenant Commander Inderjeet Singh Chauhan and Lieutenant Varsha Shinde. The forward part of the tableau depicts women aircrew of Dornier aircraft flying overhead, highlighting all women crew surveillance sorties undertaken in the year 2022. And now paving their way on Kartavya path with commitment to achieve their motto, Nabha's
Here come the men in blue. Warrant Officer Ashok Kumar, Vishish Seva Medal, leading the Air Force Band, playing the tune Sound Barrier Quick March. The band comprises 3 drum majors and 72 musicians. Dressed in colorful ceremonials, this band has enthralled its audience across the country and overseas. And behind the Air Force Band is the marching contingent of the Indian Air Force. The Indian Air Force marching contingent comprising 144 air warriors and 4 officers led by squad leader Sindhu Reddy. And up in the air, 3 MiG-29 air superiority fighters flying in big formation led by Group Captain Chitwan Arora. The 3 supernumerary officers of the IF marching contingent behind the contingent commander are Flight Lieutenant Ayush Agrawal, Flight Lieutenant Tanuj Malik and Flight Lieutenant Pradhan Nikhil. And a smart salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. And now the Indian Air Force tableau displaying the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. A rotating globe highlights the IF's expanded reach whereby it has been able to render humanitarian aid across borders. AWNC aircraft carries indigenous payloads, having enmeshed linkages with GSAT-7A, the IF's IACCS and other flying platforms depict how well the Indian Air Force has embraced NCW across multiple domains. NCA Tejas Mark II, NCA Prachand, AWNC Netra and C-295 bolster the fighting and logistics capability. Induction of women cadres in all ranks enhances the Nari Shakti. Also depicted a team of Garuds in combat gear with laser designation equipment and specialist weapons. Ladies and gentlemen, next we have DRDO tableau. Moving now on the Kartavya path, securing nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats. Captained by Saurabh Verma, Scientist E. The tableau showcases various technologies for surveillance, communication and neutralization of enemy threats like advanced unmanned aerial vehicles, airborne early warning and control systems, electro-optic and infrared imaging cameras, radars and sonars which provide edge to the Indian soldiers against any adversary. Moving silently and swiftly on the Kartavya path and captained by R.R. More, Scientist F, is the wheeled armored personnel carrier carried on a specialist 70-ton trailer. Both the wheeled armored personnel carrier and 70-ton trailer are designed and developed by the Defence Research and Development Organization. The wheeled armored personnel carrier is a modular 8x8 combat platform and performs the role of infantry vehicle, CBRN vehicle and ATGM transporter. The 70-ton trailer is equipped with state-of-the-art hydraulic suspension for better mobility. कर्तव्य पथ पर अडिग अजय अखंड भारत का गणतंत्र का राष्ट्रव्यापी प्रतीक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रमाण है कर्तव्य पथ। घर में जाऊं रण में यूं ठन, कान खोलकर सुन ले दुश्मन, मातृभूमि के कण कण को शत्रु रक्त से नहलाऊंगा, लहर लहर के आसमान में बायनेट पे लहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। समय और काल को अपनी कलाइयों पर बांधे असम राइफल्स पूर्वोत्तर के प्रहरी, पूर्वोत्तर के मित्र सलामी मंच की ओर 187 वर्षों का अद्वितीय इतिहास कैप्टन अक्षय के नेतृत्व में इस दस्ते में पुरुषों और महिलाओं का मिश्रित मार्चिंग दस्ता है। एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अवसर का प्रतीक। महिला सैनिक अग्रिम मोर्चों पर, चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर या संयुक्त राष्ट्र मिशन हो। 4 अशोक चक्र, 33 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 422 सेना मेडल। आदर्श, कर्तव्य, सर्वोत्तम, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे असम राइफल्स का कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता असम राइफल्स के ब्रास और पाइप बैंड। ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर राजेश कुमार, पाइप बैंड का हवलदार पूर्ण बहादुर राय। 83 संगीतकार असम राइफल्स के सिपाही। देश की हमने शान बढ़ाई
कि मधुर धुन बजाते हुए तो आनंद लें इस सुरमई धुन का। संगीत शौर्य शक्ति का सशक्त संगम। The next contingent marching swiftly at Kartavya paths of Indian Coast Guard. Sentinels of our sea contingent is led by Deputy Commandant Rohit Singh, followed by Deputy Commandant Aken Zutsi, and two lady officers of the guard, Assistant Commandant Mansi Shelar and Assistant Commandant Nimisha Soparkar. Indian Coast Guard is the first force to employ women officers in operational role at sea. One of the primary duties of the Indian Coast Guard is prevention of smuggling through maritime roads. The motto of Indian Coast Guard is Vayam Rakshamaha, which means we protect. और अब देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 102 उत्साही जवानों का दस्ता। इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। सीआरपीएफ के ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए सीआरपीएफ का एकमात्र पूर्ण नारी प्रधान दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। दस्ते की कमान संभाल रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है, चाल संग तू चल रही, प्रकांड धुन निकल रही, अचल रही अटल रही है, नारी तू प्रबल रही है, शक्ति से भरी हुई, रहे ना तू अब डरी हुई। सीआरपीएफ को पहली महिला सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ के पास अब तक के सबसे बड़े वीरता पुरस्कारों की संख्या है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में सीआरपीएफ द्वारा चीनी आक्रमण को विफल करने के फलस्वरूप इस दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Now approaching the saluting desk is the Railway Protection Force band. They not only ensure your safe journey but also entertain you with their soul-stirring music. The impressive Railway Protection Force band, consisting of 92 personnel, led by Suresh Chandra Saini Constable Band, playing the tune Gangotri. Following the Railway Protection Force band is Railway Protection Force marching contingent. The contingent approaching the saluting desk is of the Railway Protection Force led by Saurabh Kumar, IRPFS, Assistant Security Commissioner. RPF, an armed force of the Union, has been providing security to about 23 million passengers daily over Indian railways. Living up to its motto, Seva Hi Sankalp, the RPF personnel rescued 17,756 children and saved 852 lives during the year 2022. और अब रेलवे सुरक्षा बल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम उनके साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां में फिरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। इस दस्ते में 1 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर, 15 हेड कांस्टेबल एवं 42 कांस्टेबल शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, जिसमें 35 महिला कांस्टेबल भाग ले रही। बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह 39वीं बार इस बैंड में भाग लेते हुए एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। और इसके पीछे महिला आईपीएस अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुकातन के सशक्त नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 1 राजपत्रित अधिकारी, 2 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल्स एवं 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस गौरवशाली दस्ते ने 1950 से लेकर आज तक अनवरत गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हुए 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब अपने नाम किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और अब रेगिस्तान का जहाज ऊंट आ रहे हैं सलामी मंच की ओर।
सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज में डिप्टी कमांडर मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का भाग है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बीएसएफ का उल्लेखनीय कदम केसरिया साफा कलंगी गोरबंद अचकन कमरबंद मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता सबका मन हो रहे हैं। सभी जवान 6 फीट से ऊंचे और सबने एक तरह की मूछें रखी हैं। चाहे राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो लू के थपेड़े या गुजरात का कोसों दूर फैला कच्छ का रण, रेगिस्तान का जहाज सुरक्षा और चौकसी में सीमा प्रहरियों का सबसे भरोसेमंद साथी, आदर्श जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपको बताना चाहूंगा कि दुश्मन इन ऊंटों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि ऊंट की आंखों में एक प्राकृतिक वाइपर होता है जो धूल की परत साफ करता है। और अगला दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड दस्ता, संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड दस्ता। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का बल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ 35 बैंड वादक शामिल। यह बैंड गणतंत्र दिवस समारोह रेगिस्तान और मारवाड़ उत्सवों का स्थायी आकर्षण है। When united is our youth, every hurdle, every obstacle, every path becomes smooth. When the youth steps out in unison, every stone would pave the way, because youth are the power of our tomorrow and the energy of our today. So here comes, ladies and gentlemen, with swelling chest, the future power in national building, National Cadet Corps Boys Marching Contingent, comprising of 148 young and dynamic cadets of NCC, led by Senior Under Officer Pujari Sivanand of NCC Directorate, Maharashtra. NCC has 17 directorates, which comprises of nearly 14 lakh cadets on its roll. NCC is one of the largest youth uniformed organizations in the world. Cadets in NCC have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. On the heels of NCC Boys Marching Contingent, with great zeal and zest, marching on the tune of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, a tune which stimulates our mind, body and soul and fills all of us with brimming enthusiasm and also forces our feet to tap and lips to hymn. Here comes, ladies and gentlemen, the combined band of NCC Boys Scindia School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, Rajasthan, led by Senior Under Officer Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Red streaks, long hair, colorful dress, high heels, pretty face, soft heart. Haha, not our thing, because we are not just girls. We are NCC Girls Marching Contingent. Yes, ladies and gentlemen, under the command of Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, we have NCC Girls Marching Contingent consisting of 148 Senior Division Cadets. NCC imparts training to young cadets to instill in them a sense of unity, discipline, integration and community development. NCC is at the forefront of nation building through its youth and power. युवा शब्द को उल्टा कहें तो वह वायु बन जाता है, तभी युवा तूफान लाता है। तो उसी तूफान के पीछे अब कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भावना के साथ दस्ते की कमान क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की आंचल शर्मा के हाथ में। 148 स्वयं सेवक शामिल। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छता अभियान के दौरान 26 लाख किलोमीटर की दूरी तय। हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके विशेष योगदान की मन की बात में अत्यंत प्रशंसा की। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श है मैं नहीं आप। Now coming in front of you are the mass pipe and drums band of the Indian Army. The 128 musicians of the band, drawn from 7 regimental centers, are led by Subedar Major Bhavan Adya of Bengal Engineers Group and Center, assisted by Subedar Major G. Ramu of Madras Engineer Group and Center, Subedar Major Manmohan Singh of 1 Signal Training Center, Subedar Parthasin M of Madras Regimental Center, Nayab Subedar Mahavir Singh of Garhwal Rifles Regimental Center, Subedar Mangal Singh Pawar of Kumaon Regimental Center, and Nayab Subedar Sukhdev Raj of Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center. They are playing the tune Nanda Devi. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिवादन करें बाल पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी
से सम्मानित बच्चे कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, खेलकूद, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और राष्ट्र की उन्नति के द्वार भी। 11 बच्चों को इस बार यह उपलब्धि हासिल हुई है। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें देश के इन कीर्ति स्तंभों का। Our strength is our vitality. Our vitality is our solidarity. Our solidarity is the spirit of nation first, always first. So ladies and gentlemen, to showcase the uniqueness of this pious day on the ceremonial boulevard and Broad Avenue, Kartavya Path, a series of various tableaus depicting an extraordinary speed and scale of progress in each and every field of our great nation, India. Depicting the concept of together with all, development for all. Depicting that we are new energy, new enthusiasm and new development. So here comes, ladies and gentlemen, in the series of tableaux, the tableau of Andhra Pradesh. Reflecting a theme, Prabala Tiratham, meaning a festival of peasantry during Mahasankranti. और अब असम राज्य की झांकी, जिसमें लचित बोरफुकन अदम्य साहस, वीरता, बलिदान और देशभक्ति के साक्षात अवतार हैं। कामाख्या माता का पवित्र मंदिर, आस्था का प्रतीक और असम के लोकप्रिय बिहू नृत्य, आध्यात्म की भूमि, असम राज्य की मनमोहक झांकी का। तो आप भी आशीर्वाद ले सकते हैं कामाख्या माता का पवित्र मंदिर का, आस्था का प्रतीक, जहां आशीष की बरसात पूरी तरह से तय है, निश्चित है। तो आनंद लें असम के लोकप्रिय बिहू नृत्य का। Now we take you to the stunning landscape of Ladakh, coupled with its diverse culture, traditions, attire, and nestled in the lap of Greater Himalayas, and the Karakoram range is a paradise for adventure lovers and a heaven for those who appreciate the sound of silence. उत्तराखंड देवभूमि की झांकी। उत्तराखंड के कण कण में देवत्व है। एक ओर जहां पवित्र चारों धाम तथा जीवनदायिनी गंगा यमुना अविरल बहती है, वहीं मानस खंड कुमाऊं में विभिन्न मंदिरों का समूह है। तो देखें कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पक्षी मयूर और जागेश्वर धाम, जहां नदियां पर्वत हंसते हैं, जहां देव बसते हैं।
now showcases sustainable livelihood through tourism and organic farming in Tripura with active participation of women. Rich cultural diversity consisting of archaeological monuments, water bodies, temples, mosques and Buddhist stupas. The tableau depicts beautiful Mahamuni Pagoda, Buddhist stupa and performing art forms of Tripura, Hojagiri and Mamita. The tableau also showcases women at work, women with baskets of pineapples, cottage, tea planters and women dressed in colorful traditional attire. स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से युक्त गुजरात की विषय वस्तु पर आधारित गुजरात की झांकी ऊर्जा के विशालतम स्रोत सूर्य और पवन के अलावा कच्छ के अभूतपूर्व हाइब्रिड एनर्जी पार्क को दर्शाती ये झांकी इसमें पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित मोढेरा गांव को चित्रित किया गया है। मोढेरा गांव यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप द्वारा की जा रही सिंचाई एवं सौर ऊर्जा को भी इसमें दर्शाया गया है। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय गुजरात माहे सोलर नो जय जयकार कुसुम स्कीम थी चाले सोलर पंप खेड़ो खुशाली मांगाय गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने आठे प्रहर ग्रीन एनर्जी पैदा थाय गुजरात। झारखंड राज्य की झांकी पवित्र वैद्यनाथ धाम मंदिर पर आधारित, जहां अब हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। झांकी में भगवान बिरसा मुंडा और सोहराई चित्रकला भी दिखाया गया है। और अब अरुणाचल प्रदेश राज्य की ये झांकी प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को दर्शाती है। हिमालय के अंचल में बसे अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते सूरज की धरा के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में सड़क, रेल और हवाई संपर्क जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित कई योजनाएं शुरू की गई हैं। And enchanting, a cradle high in the lofty green Himalayas, hailed all over the world for its incredible natural beauty, surrounded by mountains and peaks. Here comes the tableau of Jammu and Kashmir. सर्वालयं सर्वचरा
Kerala, Nari Shakti. Kerala presents the tableau of Nari Shakti and folk traditions of women empowerment that includes Kaladipayattu, a martial art with more than 2,000-year history, percussion and tribal tradition. The women-only tableau is portrayed in a traditional ship called Bepuri Uru. और अब प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर केंद्रित पश्चिम बंगाल की झांकी। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है और यह वैशिष्ट का जश्न मनाने का एक प्रयास है। From Maharashtra, Sade Teen Shakti Peeth and Nari Shakti. The tableau of Maharashtra on the background of Azadi Ka Amrit Mahotsav presents Sade Teen Shakti Peeth and Nari Shakti under the theme Nari Shakti. Maharashtra is the land of saints and gods. Out of the many Shakti Peeths in the country, Maharashtra has 3.5 Shakti Peeths. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचं ब्रह्म तिचं मुक्ती आदि माया विद्या शक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्यापासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी शक्ती माता साडेतीन शक्ती पीठे दाखवी ती आम्हा Tamil Nadu now showcases women empowerment and culture of Tamil Nadu which prevailed from the Sangam era to the present. Tableau showcases the statue of ancient poetess Avaiyar, an icon for intellectual women. The statue of Veer Mangai Velu Nachiyar, riding on a horse, who stood as an epitome of bravery and waged war against the East India Company. शक्ति का उत्सव इसी विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी कर्नाटक राज्य से। अगले भाग में कुशल दाईमा सुलगिट्टी नरसम्मा, मध्य में पौधों का पोषण करती पेड़ों की मां तुलसी गौड़ा और अंतिम भाग में पौधे रोकती सालू मर्दा हिमक्का की प्रेरणादायक जीवन गाथाओं को जीवंत करती ये मनोरम झांकी। ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಾಡದ
Coming up next from Haryana, Kurukshetra. Kurukshetra is the land of eternal message of Srimad Bhagavad Gita, which was delivered by Sri Krishna to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra around 5,159 years back on the first day of the Mahabharata battle. Kurukshetra celebrates the anniversary every year as International Gita Mahotsav with an objective to spread the worldly wisdom of Bhagavad Gita to the entire globe. और अब संघ शासित क्षेत्र दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव की ये झांकी जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण विषय वस्तु पर केंद्रित है। झांकी में INS खुखरी के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। झांकी में वर्ली जनजाति के नर्तक करपा वाद्य यंत्र के संगीत संग भवाड़ा और मच्छी नृत्य कर रहे हैं। झांकी में एक बड़ी नाव दिखाई गई है जो क्षेत्र की मछली पकड़ने की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। Ladies and gentlemen, a tableau from the land of holy rivers and home to Ayodhya and Mathura, the birthplace of Lord Rama and Lord Krishna, Uttar Pradesh, showcasing the theme of 3-day Deepotsav in one of the most important pilgrimage city, Ayodhya, which created a Guinness World Record by lighting 1,71,000 lamps in the year 2017. ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट्स यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत मिलेट्स के उत्पादन में सबसे आगे और इसके प्रचार प्रसार से किसानों को अत्यंत लाभ मिलेगा। झांकी को मिलेट्स के दानों की रंगोली से सजाया गया है। इन मिलेट्स के उत्पादों का प्रदर्शन भी झांकी में किया गया है। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलट इनको, मोटा दाना भी इनको कहें। ज्वार बाजरा की कुटकी इनमें आते हैं, पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं।
Next is the tableau of Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Eklavya Model Residential Schools, a scheme to provide quality education to scheduled tribe students in the remote tribal areas. A girl on the front page is the face for equality of educational opportunities provided at EMRSs. नशा मुक्त देश अब भारत को बनाना है, नशे को अब जड़ से मिटाना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय की झांकी, देशवासियों को नशे के विरुद्ध शपथ लेकर जन आंदोलन के लिए प्रेरित। जिंदगी के साथी है हम ड्रग्स के दुश्मन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम। नजरबाज की जीते सी होती है पहचान, नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान। सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए। ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी, हर कदम पर संग में आपका एनसीबी। Ministry of Home Affairs presents Nari Shakti of the CAPFs from BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB and Assam Rifles. बढ़ते भारत की नई तस्वीर है नारी, रक्षक योद्धा और वीरों की भीड़ है नारी। धरती हो या आसमान, शून्य से कम हो तापमान, सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, रणभूमि या जनसेवा, कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, रक्षक योद्धा। प्राकृतिक पुष्पों की महक एवं मुस्कान से कर्तव्य पथ को सराबोर करती अगली झांकी है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की। जैव विविधता संरक्षण के विषय पर आधारित इस झांकी में चीतों के पुनर्स्थापन के अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के भागीरथ प्रयास को दर्शाया गया है। मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Next, from the Ministry of Culture, Shakti Rupena Shamsita. The tableau is based on the theme Shakti or women power and celebrates the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau represents a gala carnivalist of descent of divinity on the Kartavya path. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity, as these forms of Matri, Divine Mother, create, maintain and destroy and recreate the universe.
surcharge the atmosphere with patriotic fervor and nationalistic ardor. We have a contingent of 326 female and 153 male dancers, with Vande Bharatan as their motto and Women Power as their theme. This cultural extravaganza is a second edition with the theme Nari Shakti, being presented by dancers selected through a rigorous month-long competition in the classical, folk, tribal and contemporary fusion dance forms, held in November and December at various state and zonal levels. This cultural performance depicts the intrinsic power of women through 5 elements: earth, water, air, space and fire. आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, नए भारत की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है. So here we have, ladies and gentlemen, a spectacular cultural performance on the national stage, Kartavya Path. मैं धरा हूँ, जल हूँ, गगन हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नार हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ. स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवल धानी धैर्यधारी, मैं धरा हूँ. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः. जीवन दायिनी हूँ, तोड़ती जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं.
ಕಿಡತನ ಧಿಂತನ ಕಟತನ ಧಿಂತನ ಕಟತನ ಧಿತ್ತ ತಿರಿಕಿಡ ಧಾ ಹಾ ಕಿಟ ಕಿಟ ಧಿತ್ತೆ ತಿರಿಕಿಡ ಧಾ ತಿರಿಕಿಡ ಧಾ ಧಿತ್ತೆ ಹಾ ತಿರಿಕಿಡ ಧಾ ಧಾ ತಿರಿಕಿಡ ದತ್ತ ನಾ ತಿರಿಕಿಡ ಧಾ ತಿರಿಕಿಡ ದತ್ತ ದಾದನ್ ದಿನ್ ಧಾ ದಿನ್ ಧಾ ಧಿನ್ ಧಾ ಧಿನ್ ಧಾ ಧಿಂತನ ಕಟತನ ಕಟತನ ಧಿತ್ತ मैं अनंता गगन का विस्तार हूँ मैं, देखिए मुझको क्षितिज के पार हूँ मैं। कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूँ मैं, एक चिंगारी लपट हूँ, आग हूँ मैं।
देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत से आई नई ऊर्जा और नवनिर्माण इस सागर में गोते लगा रहे हैं। इसलिए हमारे हर राष्ट्र पर्व की सज-धज ही अलग है। That surely was an explosion of color and profusion of spirits, truly mesmerizing. Spectacular displays from various states meant to promote brotherhood, harmony, and unity amongst all. All in all, a cultural extravaganza of the highest order. Cultural display that fosters equilibrium in the diversity of the hallmark of mother of democracy, that is India. What sets our nation apart is that in spite of the crisscrossing of a plethora of culture, language, religion, custom, faith and tradition, our people are bound together in unison by a deep-rooted secular identity. India, a nation of 1 billion people, and a nation for 1 billion reasons. And in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. आज कर्तव्य पथ पर श्रम योगियों को नमन है, जन भागीदारी का चलन है, महिला सशक्तिकरण का अमल है, युवा शक्ति का चमन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद है। आज एक वज्र के समान है भारत, आज नई ऊर्जा से जवान है भारत, आज विराट शक्ति का निवास स्थान है भारत। और ये देखिए, कर्तव्य पथ पर 107 डेयर डेविल्स के साहस का सैलाब लेकर आ रहे हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने जोरदार सलामी दी और वो भी 10.5 फीट की ऊंचाई से। क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए एक ही काफी हूं। और अब देखिए, जिम्मी की पोजीशन में नायक देसाई अजीत, कोर ऑफ सिग्नल्स का चिन्ह जिम्मी को दर्शाते हुए, हम तीव्र भी हम चौकस भी, हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत। नए नए आसमान छूने जा रहा है भारत। ये मोटरसाइकिल है या वायुयान, या जमीन है या आसमान, मुश्किलें हैं आसान नहीं, लेकिन मुश्किलों से हाथ मिलाना तो इनके रोज की आदत है। और ये देखिए, मोटरसाइकिल पर योग करते हुए, हमारे यहाँ योग इतना प्रचलित हो चुका है कि हमारे जांबाजों ने तो योग को बाइक पर ही करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे डेयर डेविल्स। वाह, क्या बेफिक्री है, एक से बढ़कर एक पोजीशन को बड़ी ही एकाग्रता और संतुलन से मोटर बाइक पर योग करते हुए। और अब देखिए, सिग्नल फाइटर्स की पोजीशन में कोर ऑफ सिग्नल्स के कलर्स को बड़े ही शान से थामे हुए और अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्भुत उदाहरण देते हुए। आपको ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं लग रही? जी नहीं, ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं। ये भारत माँ के वो सपूत हैं, ये भारत माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं, ये साहस और निर्भीकता के प्रतीक हैं। चलते हैं अब सिग्नल रॉकेट की उड़ान की तरफ। सिग्नल की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नए सृजन हम। और अब देखिए, 18 फीट की लैडर पर खड़े हवलदार सुजीत मंडल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए ये पहली बार 18 फीट की लैडर पर कर्तव्य पथ पर अपनी जीत का परचम लहराते हुए, हमें बताते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगा मैं तिरंगा। जी हां देवियों और सज्जनों, ठीक सुना आपने, 18 फीट की ऊंचाई पर पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए। और अब देखिए, देश के विकास का रथ सिग्नल रथ की फॉर्मेशन में हमें यह बताते हुए कि भारत की उत्थान प्रगति का रथ अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह है आज का भारत जो ना थकेगा कभी, ना मुड़ेगा कभी और ना ही झुकेगा कभी। ये बता रहे हैं, सबका साथ सबके विकास का रथ जिस प्रगति से बढ़ रहा है वह है नया इतिहास, नया विकास। और अब देखिए देवी और सज्जनों, अभिमन्यु की फॉर्मेशन में कोर ऑफ सिग्नल्स के फ्लैग को लहराते हुए तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता तुम्हें आसमान, कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। देवी और सज्जनों, इन्फो वॉरियर्स बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और अब उड़ते हुए पंछी की तरह दिखते हुए हमारे डेयर डेविल्स, इन्होंने तो कर्तव्य पथ को आसमान ही बना दिया है। यह है क्लस्टर ऑफ बर्ड्स फॉर्मेशन। देवी और सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा था कि मोटरसाइकिल्स का ऐसा उपयोग भी किया जा सकता है? और अब
फूलों का राजा कमल भी आ चुका है कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाने। आप देख सकते हैं न्यू इंडिया का अभिवादन हमारे राष्ट्र पुष्प कमल के फूल की आकृति के माध्यम से करते हुए हमारे जांबाज। और अब रुकूंगी नहीं, हुंकार करूंगी वाइस कैप्टन लेफ्टिनेंट डिंपल सिंह भाटी सीट पर खड़े होकर जोरदार सलामी देते हुए। और अब देवियों और सज्जनों, 9 मोटर बाइक्स पे 33 डेयर डेविल सूबेदार प्रताप सिंह के नेतृत्व में ह्यूमन पिरामिड चट्टान की दीवार जैसे कि टीम इंडिया के फौलादी इरादे हो जो ना कभी डिगे, ना डरे, ना झुके। आंधियां आए तो सही, परचम आए तो सही, ये रहा मेरा नशेमंद, कोई आंख उठाए तो सही, क्योंकि हम आन है, हम शान है, हम नेक है, हम एक हैं। आंधियां चले, बादल गरजे, सागर की लहरों में आया तूफान कई बार, पर हम कभी पीछे हट के देख रहे नहीं। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल लहरे ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। और अब अगला विवरण विंग कमांडर सुजाता तिवारी के द्वारा। Helicopters Mark 4 flying in aerial formation. Formation led by Group Captain Deepak Kumar Bishnoi. This formation flying at 350 kilometers per hour. A child capable of high altitude operations. And there you can see the first formation Prachand led by Group Captain Deepak Kumar Bishnoi. Now you can see and red the eye in the sky. And you can see laser formation AWC flown by Wing Commander P. led by Group Captain A.D. Lodi. And there you can see ground missile service. And there you can see do look out for the single Rafale aircraft flying at the speed of light. गत वर्ष कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। कर्तव्य पथ को सजाने संवारने में देश के विभिन्न हिस्सों से आए अनेक श्रमयोगियों ने अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपने परिश्रम के पसीने से इसे एक नया आकार दिया। The President's bodyguard has been sighted. They are on their way to the saluting dais, riding in perfect symmetry in rank and file with an easy gait, looking truly elegant, impressive and majestic. Pennons fluttering in the morning breeze, the glint of lance and the drawn sword, white breeches Napoleon, boots and spurs, white gloves, white sabretache, gold epaulets, gold girdle, scarlet tunic, blue ceremonial turban, looking truly awesome, assured and proud. Led by the Commandant Colonel Anup Tiwari astride Glorious, the 2IC, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav astride Sultan, Division 1 under Risaldar Major K. Kumar astride Azad, Division 2 under Risaldar Harpal Singh astride Gabbar, the colours being carried by Risaldar Rajesh Punia astride Ace. The Commandant's President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India.